Assalamu alaikum, dear students. Let us today learn about the education philosophy of John Dewey. John Dewey was one of the modern American thinker. He was a great educationist and a philosopher. He has contributed a lot in field of education. He has contributed in the field of pragmatism, and he has given his unique experimental school, as well as he assumes that the school is a miniature society. He was believing on action. He was believing on action-oriented learning. So let us first of all study the brief life sketch of John Dewey. John Dewey was one of the American modern thinker, and he was born in Vermont in 1859. His father was an ordinary shopkeeper, and he was brought up in a rural environment. In 1879, he graduated from Vermont University. He obtained the degree of PhD in philosophy from Johns Hopkins University. He remained as a lecturer in University of Michigan for some time. In 1894, he was appointed head of philosophy department of University of Chicago. In 1896, he founded his laboratory school in the university, which exercised a remarkable influence on the educational theory and practice in America. And this is the laboratory school which gives fame to the name of this great educationist John Dewey. Even in America, it was realized that the laboratory school is working, and it is in need of the hour at that time. So he got a fame because of this concept of, and it was a novel concept. This laboratory school was a novel concept at that time. And from 1904 to 1930, he served as a professor of philosophy and education at the Columbia University, and he died in 1952. तो बेटा अब हम देखेंगे थोड़ी सी जो पब्लिकेशन जो बुक्स उन्होंने लिखी है, जो कुछ बुक्स उन्होंने लिखी है उनके नाम है स्कूल एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, हाउ वी थिंक, रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, एक्सपीरियंस एंड नेचर, एजुकेशन टुडे, फ्रीडम एंड कल्चर. Now let us study about the educational philosophy of John Dewey as when we see how can we define the entire philosophy of education of a particular scholar or a particular educationist. We first of all see what he said about the concept of education, then about aims of education, then about curriculum, then about methods, then discipline, and finally we see what he said about the role of teacher. Now let us first of all learn what he said about the concept of education. According to John Dewey, education is the development of all those capabilities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. Now see, if we analyze the definition, we come to the conclusion that he has touched on the two important domains of a person. One is his individual self and another is social self. That means first of all he want to enable a child to recognize his own self. एक बच्चे को वो एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जहाँ पे बच्चा खुद पहले जानेगा कि उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ है. तो बाद में जब वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को पहचान लेगा एक बच्चा, ऐसा सोशल एनवायरनमेंट होगा कि वो क्या करेगा, एक जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हो उसको कंट्रोल करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसमें अकोमोडेट करेगा. यानी वो पहले खुद को डेवलप करेगा, बाद में वो सोसाइटी को भी डेवलप करेगा. ये कैसे मुमकिन है? ये तब ही मुमकिन है जब हम हर एक उस कैपेबिलिटी के बच्चे को डेवलप करें. यानी जब हम उसकी मेंटल कैपेबिलिटी को डेवलप करें, जब हम उसकी फिज़िकल कैपेबिलिटी को डेवलप करें, जब हम उसकी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी को डेवलप करें, जब हम उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को डेवलप करें, जब हम उसकी सोशल कैपेबिलिटी को डेवलप करें, जब हम उसके हेड, हार्ट एंड हैंड को डेवलप करें, जब हम उसको स्किल दें, जब हम उसके माइंड को इनोवेटिव आइडियाज़ बना दें, और जब हम उसको एक सोशल कंसेप्ट दें, देन ये पॉसिबल है कि तो वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को फुलफिल करेगा और अपनी कैपेबिलिटीज़ उसकी हर एक कैपेबिलिटी एजुकेशन से ही डेवलप हो जाएगी और वो सोसाइटी में अच्छा मुकाम हासिल करेगा. नाउ व्हाट डिवे सेड अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन, उसने एम्स ऑफ एजुकेशन दो हिस्सों में डिवाइड किया है, प्रॉक्सिमेट एम एंड अल्टीमेट एम. प्रॉक्सिमेट एम में उसने कहा है प्रॉपर एडजस्टमेंट. प्रॉपर एडजस्टमेंट मीनिंग कि एक बच्चे को हमें वो एजुकेशन देनी है कि बच्चा अपने आप को एडजस्ट करे. किस में एडजस्ट करे? वो जो उसके डे टू डे सोशल अफेयर्स है, सोशल इवेंट्स है, उनको अंडरस्टैंड करे. किसी जगह वो मॉडिफाई इनको करे, किसी जगह इनमें एडजस्ट हो जाए, और जो एनवायरनमेंट है उसको मैनिपुलेट करना आ जाए, वो एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रह रहा हो. इट मीन्स दैट कि एजुकेशन का यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इससे हमका मतलब है कि ये प्रोडक्टिव इन द नेचर होनी चाहिए. यानी एक बच्चे में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एडजस्ट करे अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल इवेंट्स एंड अफेयर्स.
दूसरी जो इसने इसमें प्रॉक्सिमेट एम में कहा है रीच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ, क्योंकि जो ये प्रेगमेट डिवे वाज ए प्रेगमेटिस्ट, तो इनका एक चीज़ था जो फोकस था, दैट वाज उनके पास वही पर्पस एजुकेशन होती थी जो प्रेजेंट लाइफ को प्रॉस्पर बनाती है, और इतना ही नहीं, जो जिससे इंसान का प्रेजेंट बेहतर बनता और फ्यूचर के लिए भी वो अच्छा करता। वो कैसे मुमकिन है, जब एक बच्चे की पॉसिबिलिटीज़ को हम फुलफिल करेंगे, जब एक बच्चे को में के हेड एंड हार्ट और हैंड में ऐसी क्वालिटीज़ हम देंगे कि उसकी प्रेजेंट लाइफ बेटर बन जाए, और वो अपनी वैल्यूज़ खुद क्रिएट करे, और वो सोसाइटी में प्रोग्रेस मेंटेन करे। ये तभी मुमकिन है जब उसमें उस बच्चे की हम कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेंगे। अल्टीमेट एम जो डिवे की थी, दैट वाज कि डिवे वाज ऑफ द ओपिनियन, डिवे कह रहा था कि देखिए अल्टीमेट एम ग्रोथ होनी चाहिए, मोर ग्रोथ एंड स्टिल मोर ग्रोथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम एक बच्चे में कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेंगे तो वो सेल्फ एस्टीम में चला जाएगा। सेल्फ एस्टीम जब उसको हासिल हो जाएगा तो बच्चे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। यानी अगर वो ज़िंदगी में कोई एक वैल्यू क्रिएट करता है तो उसको हायर वैल्यूज़ की सोचनी चाहिए, और हायर वैल्यूज़ की सोचनी चाहिए। उसको ज़िंदगी में रुकना नहीं है। आफ्टर एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज उसको मोर ग्रोथ होना है, मोर और मोर ग्रोथ इन बोथ टर्म्स। खुद को भी डेवलप करना है, और जब वो खुद डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली समाज भी डेवलप हो जाएगा। नाउ डिवे ने करिकुलम के बारे में क्या कहा? एज यू न्यू, करिकुलम इज़ अ रोड मैप ऑफ एनी एजुकेशन। तो डिवे ने कहा देखिए करिकुलम में सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस जो इंटीग्रेटेड होने चाहिए। तो उसने कहा देयर शुड बी नो फिक्सड करिकुलम, कोई फिक्सड करिकुलम नहीं होना चाहिए। तो हमें करंट में बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, इम्पल्सिस क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, उसी के बेस पे करिकुलम को बनाना चाहिए। इट शुड बी सेंटर्ड ऑन चाइल्ड एक्टिविटीज़। को करिकुलम जो है हमें देखना है कि बच्चे को एक्टिविटी के ज़रिए हम पढ़ाएं, क्योंकि एक्टिविटी के ज़रिए जो पढ़ता है वो, क्योंकि उसका लेबॉरेटरी स्कूल का जिसने जो कंसेप्ट दिया उसमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की थी। ये एक्टिविटी एक्शन पे ही बिलीव करते हैं, डिवे एक्शन पे ही बिलीव करता था, क्योंकि वो एक प्रेगमेटिस्ट था। तो उसने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस आपस में, सब्जेक्ट कुछ और हो, एक्टिविटी कुछ और हो, एक्सपीरियंस कुछ और, नहीं नहीं नहीं, ये आपस में इंटीग्रेटेड होनी चाहिए ताकि बच्चा बेटर सीखे। फाइनली जब हम कंक्लूड करते हैं तो इसने डिवे ने कहा है 3 चीज़ें इसमें होनी चाहिए, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। देखिए जब हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस को मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हमें ज़रूरत है, देखिए वो ज़्यादा इनका जो फोकस था दैट वाज ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दैट वाज ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो इसके बेस पे जो सबसे पहला मेथड दैट इज़ प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट मेथड ये बच्चे को एक छोटी सी प्रॉब्लम देती है सोसाइटी के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड, वो इसमें खुद अपने तरीके से इसको हल करता है, टीचर सिंपली गाइड करता है, वो इसको स्टडी करता है, और स्टडी करते करते वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है। एक केस स्टडी करता है वो, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करती है। ये पर्पजफुल एक्टिविटी होती है, एक सोशल एनवायरनमेंट में होती है, जिससे बच्चे को सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि बच्चे को ज़िंदगी गुजारनी सोसाइटी में ही होती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो डिवे का लेबॉर्ट्री स्कूल था वो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट स्कूल है, तो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे करता था, चाइल्ड की डेवलपमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में, और बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो उनका मानना था कि एक्टिविटी और डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है इससे हम ज़्यादा लर्न करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको हम याद रखते हैं, अगर चीज़ को करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो दैट इज़ वाई वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं। चाइल्ड इज इंटरेस्ट, उनका ये कहना था कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाए, चाहे एक्टिविटी हो, सब्जेक्ट हो, एक्सपीरियंस हो, इसमें चाइल्ड का इंटरेस्ट ज़रूरी है, तभी वो जाके लर्न करेगा। इसके बाद अगर हम डिसिप्लिन की बात करेंगे, देखिए हम जैसे स्कूल को वो मैनेजर सोसाइटी कहते थे, तो इनका मतलब है कि सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चे को हम कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, बच्चे को हम फ्रीडम दे सकते, लेकिन जब वो सोसाइटी में एक कोऑपरेटिव लिविंग जब हम उसको सिखाएंगे, उसी लिविंग के दौरान थ्रू प्रोजेक्ट्स, थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, ही विल लर्न द डिसिप्लिन फ्रॉम द सोसाइटी। लेकिन सोसाइटी भी ग्रो ऐसी होनी चाहिए जिसमें काफ़ी ग्रोथ हुई हो, ताकि बच्चे को उस सोसाइटी में कोऑपरेटिव लिविंग के ज़रिए और ग्रोथ हो जाए। टीचर को डिवे ने कहा है कि टीचर जो है नेक्स्ट गॉड है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। ये बच्चे को इसको गाइड करना है, बच्चे को एक सोशल एनवायरनमेंट देना है, बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देना है, ताकि बच्चा जो है ना ये एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट ऐसे करे, अपने आप को एक्सप्रेस ऐसे करे कि बच्चे में जो कैपेबिलिटीज है वो डेवलप हो जाए, ताकि बच्चा अपने एनवायरनमेंट को फिर बाद में कंट्रोल कर सके। उसने कहा है टीचर का बिहेवियर सिंपैथेटिक होना चाहिए, वो बच्चों के साथ उसको सोशल एटीट्यूड और सोशल पैटर्न और सोशल इंटरेस्ट जो है उसको बच्चे के समझने हैं, और अपने सोशल इंटरेस्ट्स और एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट्स उसमें इतने होने चाहिए कि बच्चा उसे सीखे। यानी बच्चे को एक बिल्कुल सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग टीचर को कराना है, और बच्चे को और एक टीचर को उसके लिए हेल्पफुल रहना है। टीचर को एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे वो बच्चे को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक सोशल प्लेटफॉर्म
बच्चे को देना है, ताकि बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज़ को वो फुलफ़िल करे, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करे और अपने सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए और बच्चे की ग्रोथ हो जाए, मोर ग्रोथ और मोर ग्रोथ हो जाए। थैंक यू।